All right. So, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching. We are back with another episode for the podcast that we have, the MSA podcast. So, welcome. Today we have our very own Fazan Shoaib, who is in Australia right now, and a bit of introduction for him would be कि बहुत से लोग इनको गुरु मानते हैं. So I think he's the right person to talk about different advice that we can get about Australia. And I would directly then say over to you, Fizan. सबसे पहले, how are you doing? And then a bit of introduction for yourself. Assalamu alaikum ji, assalamu alaikum everyone. I know Saad from years back. I think it's been more than 20 years. और I'm Fazan Shoaib. मैं Australia आया था 2018 to do my PhD in network security, and I've been living with my family since 2018 in Australia. Currently, मेरी almost PhD खत्म हो गई है. And I'm working in my own field as well. I've got two beautiful daughters, or I'm living here with my family and trying to finish my PhD on time. Yeah. So congrats. Then you say you're almost done with it. And you also mentioned you're doing it in network security. Why network security? The network security and cyber security दो बहुत जो है वो emerging fields हैं in Australia and in Pakistan. I think globally they're very prominent, and ये field especially in the market of Australia, यहाँ पर cyber security threats बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इनके enemies इतने ज़्यादा नहीं हैं, मगर cyber enemies बहुत ज़्यादा हैं Australia के. It's a vulnerable sort of market for the attackers. तो इस वजह से ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव फील्ड है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, एंड आई गेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट्स ऑन बूम. तो इस वजह से मैं और मेरा इंटरेस्ट भी ये था. मैंने प्रीवियसली आई हैव डन माय मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग नेटवर्क्स. आई हैव डन अ बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम पाकिस्तान. और उसके बाद जब मुझे पीएचडी का स्कॉलरशिप मिला, I came to Australia in 2018. So I decided that network security is the field for me. When I came to Australia, I had around 4-5 years of experience in my own field of network security. And that actually helped me a lot in getting work in my own field. So, yes. That is quite interesting. Two questions there actually. Once you mentioned कि यार ऑस्ट्रेलिया में साइबर सिक्योरिटी का बड़ा सीन है. Why is that? क्योंकि I remember किसी ज़माने में हम रेडियो में if you remember फसी जका को सुना करते थे, और उसकी YouTube पे एक वीडियो आई थी कि यार अगर पूरी दुनिया में एटम बम वाला सीन होता है या कोई न्यूक्लियर वॉर होती है तो ऑस्ट्रेलिया विल बी द ओनली कंट्री विल बी लाइक बट द हेल, क्योंकि वो बहुत आइसोलेटेड किस्म की जगह है और नोबडी बॉदर्स थ्रोइंग अ बॉम्ब देयर. तो साइबर As सिक्योरिटी actually Australia is in a way similar to Ukraine for the US because it's closer to China. सी में जो है ऑस्ट्रेलिया वो एक बहुत क्लोज अलाय है यूएस का, और इस वजह से चाइना जो है वो उसको एज अ थ्रेट भी कंसिडर करता है. साउथ चाइना सी के अंदर जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट्स हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं, नेवी है इनकी. और yes, it is isolated from the world, and if you look at the map, but at the same time strategically it's got a very important position. Okay, so Fadan, two questions on that. One is you mentioned about scholarship, right? How did you get that? PhD का क्या scene है? What is your advice to folks who want to come for PhD, and also maybe a general advice around के ऑस्ट्रेलिया में जिसने आना है उसका क्या scene है? So firstly, there are a few paths जिनसे आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं. अगर आपने पाकिस्तान में मास्टर्स बाय रिसर्च किया हुआ है और कंप्लीट किया हुआ है और आपकी कुछ पब्लिकेशंस भी हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, और वो इनके अपने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, और आप पाकिस्तान का भी स्कॉलरशिप को लेकर आ सकते हैं. जिस तरह पाकिस्तान में एचईसी के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो बेसिकली आपको फंड करते हैं, और उनके इस तरह के एमओयू साइन हुए हुए हैं इधर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिन जिन कोलैबोरेशंस की वजह से दे डोंट चार्ज यू एनी फी.
और आपका लिविंग अलाउंस जो है वो HEC देता है। सिमिलरली अगर आप इधर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और आपका अच्छा रिसर्च प्रोफाइल है और आपके आपसे रिलेटेड डिफरेंट PhDs जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, तो आप बेसिकली डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, उस सुपरवाइजर को कांटेक्ट करते हैं और उनको अपना एक रिसर्च प्रपोजल देते हैं एंड दे एक्चुअली से येस और नो। और once a supervisor is happy with you and he's willing to take you on board, there's no hassle in getting admission and scholarship as well. So scholarship basically local scholarship भी इनकी होती हैं which starts from somewhere around 2300 Australian dollars per month. Mm. Um, और वो PhD के लिए scholarships हैं जो ये लोग देते हैं for a period of 3 years, 3.5 years or 4 years depending on the university. It can vary, the amount can vary. Start from somewhere around 2,300 to 2,400 dollars, and it can go up to $5,000 that a university gives. Um, तो ये एक PhD वाला पाथ है. There are other paths जिसमें कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, मगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ्स एक्सपीरियंस है, तो आप इधर रीजनल वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं. उसको कहते हैं 491 या 490, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उसमें. उसमें ये होता है कि यू कैन ओनली लिव एंड वर्क इन अ रीजन. रीजनल एरिया की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली इस तरह है कि इस वक्त सिडनी, मेलबर्न एंड आई गेस गोल्ड कोस्ट एंड ब्रिस्बेन के अलावा जितना पूरा ऑस्ट्रेलिया है वो रीजनल है. Okay. आई एम करंटली लिविंग इन वोllongong, which is a very touristy city. Um, so I'm very lucky to live here. Or it is 60 kilometers of south. So it's outside Sydney, so it's considered as a regional area. Mm. 3 years का वो वीज़ा होता है, रीजनल वीज़ा. उसमें बेसिकली आप यहाँ आते हैं, रीजनल एरिया में रहते हैं, आप काम करते हैं रीजनल एरिया में. there's a specific amount that you have to earn each year. उन उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप किस फील्ड में काम करें, क्या जॉब करें और जॉब करें. बट यू जस्ट हैव टू लिव एंड वर्क इन अ रीजन, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया है. एंड दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू अ permanent residency, which means that you can actually spend, after spending 3 years, there are a lot of chances that you will get permanent residency very easily. The second stream that you can come here is either um, on permanent visa. If you think you've got more than 5 years of experience, तो आपके points बहुत अच्छे हो जाते हैं. आपकी age under 30, 32 है, you're not married or married, उस पर भी depend करते हैं. Then there's the entire point system. Regional भी points हैं, but regional में फ़ायदा ये है कि कम points के ऊपर आपको nomination मिल जाती है and you can come here. बट जो परमानेंट रेजिडेंसीज हैं उसमें आपकी फील्ड के अंदर नॉर्मली 90-95 से स्टार्टिंग होते हैं पॉइंट्स, ठीक है. आपके डिपेंड्स ऑन योर फील्ड. इसमें इस तरह है कि नंबर ऑफ नॉमिनेशन होती हैं जो हर साल एक जो है वो स्टेट को मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से. हर स्टेट की अलग नंबर ऑफ नॉमिनेशन होती हैं, वो इतने वीजा ग्रांट कर सकता है और फिर उस पर जाके आपके एंड अप ये होता है कि आपके पॉइंट्स उस पर लिहाज से वेरी करते हैं. नॉर्मली किसी का अच्छा पाकिस्तान में अपनी फील्ड में 5 to 5 years और 8 years एक्सपीरियंस है, तो वो PT एक जो इंग्लिश का टेस्ट है वो अच्छे उस पर मार्क्स लेते हैं, तो उसका देर आर हाई चांसेस के उसका यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए उसको. अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फील्ड. सारा कुछ इन्होंने वेबसाइट पे क्लियरली लिस्ट किया हुआ है कि कौन कौन सी फील्ड्स में लोग हमें ज़्यादा चाहिए, कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो प्रोमिनेंट हैं और इसमें इनको लोग चाहिए. जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बड़ी कॉमन फील्ड है नर्सिंग या एज केयर. देखिए हम पाकिस्तान में नहीं सोचते, मगर नर्सिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. तो नर्सिंग में आजकल जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी कम है. उसमें इनके कोर्सेज आपको करने हैं, कुछ चीज़ें उनको आपको दिखानी है और आपको उसमें इजीली नर्सिंग में आप यहाँ पर आके आप अपना जो है वो चीज़ें कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. थर्ड फील्ड इज थर्ड पार्ट इज एक्चुअली द स्टूडेंट वीज़ा, जिस पे नॉर्मली लोग आते हैं. आई वुड से अगर आप कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का कंपैरिजन करें तो ऑन एवरेज आई वुड से इजीली 7 more than 70% of people
usually come on a student visa because that's kind of the easiest option, but that's the most Okay. expensive option as well at the same time. क्योंकि मास्टर्स और बैचलर्स में स्कॉलरशिप्स लेना is very challenging क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं they actually earn from their bachelor's and master's program. तो काफी कम वो आपको 10% 15% दे देंगे scholarship just to show you that you've got a scholarship, but Hmm. actually fully funded होना bachelor's and master's is a different thing. Sure. वो एक पाथवे है जिस पे लोग आते हैं, उस पे लिमिटेड वर्किंग कंडीशंस होती हैं. तो ये तीन मेजर स्ट्रीम्स हैं जिस पे आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं. या एंड देन देयर इज अनदर वन व्हिच इज टूरिस्ट वीजा. अगर आप जस्ट आप विजिट Hmm. करना चाहते हैं तो सिंपल आप टूरिस्ट वीजा डालें और आपको वो डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू वांट टू स्पेंड हियर you can get it up to 3 months or 2 months or something like that. Okay. Many question on that क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे पता ही नहीं थी, एंड यू आर वेरी राइट कि हमें सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के अलावा और कोई बात पता ही नहीं है टू ऑस्ट्रेलिया. एंड आई रिमेंबर बैक इन द डेज आई गॉट एडमिशन इन दिस La Trobe University, and I was like, it's super expensive, I cannot afford it. Maybe expand a bit on when you say regional visa. Is it something कि उस region पे they want कि यार और लोग आएं, इसलिए they are like specific यार इसमें आए, और what's the way to do that, right? Is there any web link you can also share? I will put that in the description. But uh, just to hear from you, just okay, just just uh, just from my personal experience, I think I've applied more than for myself and for my family. I've applied more than eight. I've put more than 8 to 9 applications for myself, for my family, for my parents, for my in-laws. So I've invited a lot of people in Australia. But just from my experience, I think their systems and the website is extremely self-explanatory. So you don't actually have to go through the agents. अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़नी आती है, समझ आती है, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ कहाँ पर रिक्वायर्ड है. तो इनकी पहली बात ये कि सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इनकी जो है वो पॉइंट सिस्टम, पॉइंट स्ट्रीम्स, कोई आपको राइट डायरेक्शन में तो पॉइंट कर सकता है. मगर आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ये चीज़ें खुद पढ़ें और उसके बाद इफ़ यू वांट टू अप्रोच अ पर्सन के जी जिसको आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, इफ़ यू वांट टू अप्रोच अ माइग्रेशन एजेंट, यस यू कैन गो फॉर इट. बट अगेन उससे पहले आपकी अपनी वर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो जो रीजनल वीज़ाज हैं उसमें ये होता है आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं. कोविड के दौरान या डिफरेंट टाइम्स पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी कि यू कुड नॉट अप्लाई इट फ्रॉम ओवरसीज, यू कैन ओनली अप्लाई इट इफ यू हियर. अब नहीं है. अब यू कैन अप्लाई इट फ्रॉम एनीवेयर. सो रीजनल वीज़ा का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू कैन गेट दैट वीज़ा इजीली. सो हर रीजन ने क्या किया हुआ है कि अपने कुछ स्किल्स दी हुई है जिस स्किल्स की इनको रिक्वायरमेंट्स है. फॉर एग्जांपल जो मेरा रीजन है, they'll give the public 25 or 20 skills जिनकी इनको जरूरत है. दैट कैन बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स. नॉर्मली जो फील्ड्स होती हैं वो इसी तरह, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी की फील्ड हो गई, नेटवर्क इंजीनियर्स, नर्सिंग, एज केयर, ठीक है, इस तरह की फील्ड्स हैं. तो हर जो है वो रीजनल एरिया अपना अपनी फील्ड्स जो है वो पब्लिश करता है कुछ टाइम के बाद. और उन फील्ड्स की हर रीजन के मुताबिक अपनी जो है वो वेबसाइट पे भी, एक वेबसाइट पे कंसोलिडेट हुई भी इनकी होती है. अगर आप सर्च करें बहुत इजीली आपको बिल्कुल सामने मिल जाएंगी कौन कौन से रीजन को कौन कौन सी फील्ड में चाहिए. उस फील्ड के अंदर बेसिकली आपको अपनी करवानी है स्किल असेसमेंट. ठीक है. स्किल असेसमेंट इज समथिंग टू शो दैट यू एक्चुअली गॉट दैट स्किल. वो स्किल असेसमेंट बॉडीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, बट आप ओवरसीज से अप्लाई करके अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं. वो आपसे क्या चीज मांगेंगे? अगर मैं कहता हूं कि मैंने 3 साल जॉब की है कहीं पर, तो दे आस्क मी फॉर माय टैक्स रिटर्न्स फॉर 3 years. दे आस्क मी फॉर माय बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनकम स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर, फिर एक डिटेल अपॉइंटमेंट लेटर वो मांगेंगे जिसमें मेरा हेड जो है वो मुझे लिख के देगा कि इसने ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी और ये इसकी स्किल से मैच होता है जो स्किल हमें चाहिए. ठीक है. सो वंस यू गॉट अ स्किल असेसमेंट,
उसमें क्या होता है कि आपके जो है ना, आप यू आर एलिजिबल टू एक्चुअली अप्लाई फॉर दीज डिफरेंट स्किल असेसमेंट्स कराने के लिए आपको डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है. मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आईटी के अंदर आपको अगर स्किल असेसमेंट करानी है तो यू नीड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम. तो पाकिस्तान में जो लोग हैं इस वक्त, एंड इफ देव गॉट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन वन कंपनी और मल्टीपल कंपनी, दे हैव टू बी, इट हैज टू बी इन वन स्ट्रीम. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, तो आप डेवलपर ही हैं. अगर आप जो है वो बीए हैं तो आप बीए ही हैं 3 years से. ये 3 years का जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली आप कैलकुलेट करवाते हैं, एसीएस को भेजते हैं, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटिंग सोसाइटी इसका नाम है, जो बॉडी करती है बेसिकली सारे कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं उन सब की वो स्किल असेसमेंट करती है. ओके. और स्किल असेसमेंट करने के बाद कुछ टाइम पे ऑब्वियसली दे चार्ज यू अमाउंट, और उसके बाद वो आपको आउटपुट दे देती है, रिजल्ट दे देती है कि ये स्किल असेसमेंट आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर आपकी पॉजिटिव आ जाती है देन यू कैन अप्लाई फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीजनल वीजा. फिर देन यू हैव टू गिव अ इंग्लिश टेस्ट. वो आप आइल्स दे दें या पीटी दे दें. नॉर्मली ये दो बड़े कॉमन जो हैं वो टेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं फॉर फॉर इंग्लिश. और ये पाकिस्तान में भी कॉमनली अवेलेबल, तो ऑल्दो दे वेरी एक्सपेंसिव. टेस्ट दोनों ही बहुत महंगे, बट अगेन देन अगेन ये प्रोसेस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं. Okay. इट विल कॉस्ट यू मनी टू गेट योर स्किल असेसमेंट डन. Hmm. इट विल कॉस्ट यू मनी टू गेट योर पीटी ओवर द लाइन. आई हैव सीन पीपल जिन्होंने तीन तीन चार चार अटेम्प्ट्स में किए हैं पीटी, और वन पीटी इज अराउंड मोर देन $300 ऑस्ट्रेलियन Okay. डॉलर्स. इस वक्त तो शायद और भी ज्यादा हो गया एज वी स्पीकिंग, Hmm. बट लास्ट आई नो इट्स मोर देन $300. तो आप अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान में इट वुड बी अराउंड लाइक 60,000 समथिंग. आई मे बी रॉन्ग, इससे ज्यादा ही होगा. Hmm. बट लास्ट लास्ट टाइम आई सॉ इट वाज अराउंड $300. तो ये एक इजी स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप रीजन में आते हैं, रीजन में काम करते हैं. इफ़ यू आर अ डेवलपर आपको रीजन में जॉब मिल जाती है. अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो Hmm. आपको रीजन में अच्छी जॉब मिल जाती है. देन अगेन what you can do is, अगर आपको जॉब नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल यू कम here and you don't get a job, Hmm. you can do things like you can आप साइड जॉब्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं. ठीक है. Okay. एंड लेट यू आस्क द अदर क्वेश्चंस एज वेल, बट जॉब्स के बारे में मैं फर्दर आपको डिफरेंट उसमें बता सकता हूँ. मगर अगर आप ये स्ट्रीम के अंदर आते हैं तो आप इजीली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो सकते हैं. सेकेंडली, अगर इफ यू आर लेस देन 40 or 45 years old and you've got more than 10 years of experience, Hmm. तो फिर you should go for the mainstream permanent Okay. residencies, which are 189 and 190. उसमें ये है कि उसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. रीजन में रहने के लिए यू कैन वर्क इन सिडनी एंड मेलबर्न, जहां Hmm. पर मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर इन सिडनी एंड मेलबर्न. सो उसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. उसमें स्टेट की एक नॉमिनेशन है कि आपको स्टेट में रहना है और जॉब करनी है. बट अगेन इवन इफ यूर लिविंग इन स्टेट, यूर अगर आपको न्यू साउथ वेल्स में किया है, अगर न्यू साउथ वेल्स में आप रह रहे हैं तो यू कैन वर्क इन सिडनी, विच इज Hmm. फेयर इनफ. तो आपको उसमें 2 साल रहना है, आपको वहां पर जॉब बड़े आराम से मिल जाती है. इस Okay. तरह का है Wow. perspective. But very much informative. I think few points that I can echo with would be कि यार yes, यहाँ पे नर्सिंग का बहुत इशू है. आई थिंक जितने भी बड़े कंट्रीज हैं वहाँ पे क्योंकि ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड उनकी केयरिंग करने के लिए लोग कम हैं, स्पेशली बिकॉज पीपल डू नॉट टेंड टू हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल. यहाँ पे तो बल्कि मैंने एक स्टार्टअप में भी काम किया था, उसका नाम था केयरशिप, जो कि काम ही ये कर रहा था कि हम उन लोगों की मदद कर सकें जिनकी एज ज़्यादा हो. एंड ऑल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट के don't go through an agent if you don't have the patience and persistence to just follow a documentation or steps that are being listed on their website. I think don't bother coming to this country because it is a struggle. It is hard work and you have to do it yourself. Going through an agent would be an easy way. If you have a lot of money to waste, please do that. But I think you will be struggling if you go abroad with easy ways out, right? Um, but talking about easy ways, Vedant, it seems it sounds like a skilled visa, right? It's an relatively easier path, I would say. Still, it is yes expensive, but not as expensive as getting for studies, right? Why are people not pursuing this one? Because I think पाकिस्तान में बहुत से ऐसे skilled लोग हैं जो कि इस path में जाना चाहें लेकिन easily do that. Why do we see so less people doing this?
एक 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 जनरली इसमें एक है, इट ऑल सीम्स लाइक, अभी तक तो मैंने आपको बताए हैं कि जो उसके जो है हम्म वो गुड साइड ऑफ थिंग्स. हम्म The other thing is कि it's a 3 year lock in sort of situation where you've got to be in that visa for 3 years. You cannot apply any other visa. You cannot apply for a permanent residency for next 3 years. First thing is that. Second thing is the sort of process. जो पाकिस्तान में ज़्यादातर माइंडसेट है वो इस तरह है कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो फिर भी मैं वहां पर रीजनल एरिया के अंदर जाके इतनी आराम से जॉब नहीं ढूंढ सकूंगा, विच इज अ फैक्ट. कुछ कुछ केसेस में इट्स अ फैक्ट. हम्म अगर आपके पास पाकिस्तान में 3-4 साल एक्सपीरियंस है और 1.5 लाख की नौकरी कर रहे हो, और यहाँ पर आके आप रीजनल एरिया में आते हो, आपके स्किल्स के लिहाज से आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती. ठीक है, जॉब्स कम है, नो डाउट, बट ओके ऐसा नहीं है कि नहीं है. ठीक है. ओके देन पीपल थिंक अराउंड अदर थिंग्स कि यार चलो मुझे जॉब नहीं मिल रही है, अब मैं और जॉब की तरफ चलूं, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव ओवर हम्म हियर. ये एक ये कुछ बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना लोग नहीं इस चीज में आते. इजी रूट, लोग पैसे ज्यादा खर्च करके इजी रूट्स लेते हैं विच आर स्टूडेंट वीजा, जिसके चांसेस भी ज्यादा हैं एक्सेप्ट होने के. और कुछ इस तरह है कि उसमें स्टूडेंट वीजा पे तो ये ना कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं. देन अगेन हम्म स्टूडेंट वीजा में ये चीज़ है कि आप अब इन्होंने मास्टर्स और बैचलर्स के लिए वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो विच इज़ 20 आवर्स पर वीक, जो कि कोविड में इन्होंने राउंड अबाउट मोर देन 2 years इन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शन खत्म की हुई थी. नाउ द बैचलर स्टूडेंट कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स अ वीक. दे कैन वर्क एनी वेयर दे वॉन्ट, बट अगेन दे कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक. तो अगर लोग इस चीज पे सोचें, काफी ज्यादा लोगों को ये गाइडेंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज व्हाट आई वुड से. ओके और वो गाइडेंस इस वजह से नहीं है कि जो बीच में एजेंट्स हैं वो बेसिकली दे अर्न कमीशन ऑन योर एडमिशंस. they won't anything they won't earn anything based on your a PR visa or stuff. They can charge you a fees, मतलब जिस तरह अगर आप एक एजेंट के पास कर जाएंगे वो 1 या 2 लाख रुपए आपसे फीस चार्ज कर लेगा, कि यार मैं आप अपनी सर्विसेज इतने की दूंगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा वो वीजा अप्लाई करने में, बाकी आए या ना आए वो दैट्स अप टू यू. बट इन द केस ऑफ अ स्टूडेंट वीजा, उसमें ये है कि वो बेसिकली यूनिवर्सिटी से भी कमीशन लेते हैं जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं बच्चे को. ठीक है, और वो स्टूडेंट वीजा भी अप्लाई करने के अपने तौर से पैसे लेते हैं, तो देव गॉट अ कमीशन चेन गोइंग ऑन. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. दूसरा ये कि रीजनल एरियाज में लोगों की ना आने की एक बड़ी रीजन ये है कि लोग पीपल आर बिट अफ्रेड कि यार हम यहाँ आएंगे हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी, या हम जो है ना वो काम नहीं कर सकेंगे. ये अगेन इट इज अ फैक्ट कि जॉब्स कम है, बट I've been living in a regional area for last 5 years. और a lot of people that I know जिनके 3 to 4 to 5 years experience पाकिस्तान में थे, including myself, have no issues in actually getting a job over here in region areas as well. ठीक है. अगेन फील्ड पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, बट आई वुड से ये जनरली आप चीज़ देखें कि आपकी क्या फील्ड है, वहाँ पर यहाँ पर स्कोप है, रीजन कौन सा है. बहुत सारे रीजन्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, इट्स ओपन टू अप्लाई है. वो चीज़ें आप देख के यहाँ पर आ सकते So can you kindly also mention any website if you already know it, or maybe you can send after the call, हैं. बिल्कुल. जो कि मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मैं So बिल्कुल इसका. so I understood इनकी कि जनरली basically इनकी एक इमिग्रेशन की वेबसाइट है. ठीक है. जनरली इमिग्रेशन की वेबसाइट है, और उस पे इफ यू गो टू द मेन वेबसाइट, उससे आगे हर चीज इनकी लिंक्ड है, हर पाथवे इनका लिंक्ड है, सब कुछ लिंक्ड है. प्लस आई थिंक जो मैं करता हूँ वो लोगों को करना चाहिए कि यूट्यूब इज काइंड ऑफ द बेस्ट नॉलेज Okay. सेंटर. मैं बहुत अरसे से 3 या 4 साल से एक बंदे को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे फॉर इमिग्रेशन न्यूज, जस्ट फॉर हम्म न्यूज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है. ठीक है, क्या चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि इनकी मंथली चेंजेस होती रहती हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज में, कोटाज में, डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स में. तो what I usually do is I follow a YouTube channel of a person who's actually very good.
in all those sort of things. तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा. You can put that on the link as well. Also, one more thing, I understood the regional visa doesn't guarantee you a job. It's just an assessment and say, okay, ajo, and rest you have to figure out. And if you have a good experience, which you say around should be 5 years, the best is to directly get a job and then get a sponsorship, which I guess is a bit difficult to get. Um, but they exist. I remember you also sharing a link that if who is a professional in this field, they can my company is actually sponsoring that, or I know somebody who's actually sponsoring that, right? Uh, Um, yeah. So so sponsorship is something that a person can get if he's got the right experience and the right skill set. Uh, it is not something impossible to get. There are a lot of cases कि जहाँ पर लोगों को स्पॉन्सर किया है, कंपनी ने स्पॉन्सर करती है और आउट ऑफ द वे जाके करती है. तो कोई भी अपने आप को ये ना अंडरमाइन करे कि जी मैं hmm, जो है ना वो स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हूँ. बहुत कम कम केसेस में, बहुत कम केसेस में, स्पेशली नाउ डेज, कंपनीज बाहर से स्पॉन्सर करके आपको बुलाएंगी, बहुत कम केसेस में. और ज़्यादातर केसेस वो इस तरह होते हैं कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर देम इन वन वे और द अदर, and then they ask you, okay, we need you on board, we need you here, we need you to work on our timings, and then they actually ask to sponsor you. दूसरा केस क्या होता है कि if you're already there in a working in a company for a couple of years or maybe more, तो आपके रिलेशनशिप और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है. कंपनीज के लिए इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कि वो करें या ना करें स्पॉन्सर, क्योंकि उनको नॉर्मली लोग मिल जाते हैं. बट at the same time, if you've worked there for around couple of 2 or 3 years, तो और उनको आप कहते हैं कि जी मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, वरना मैं मुझे किसी और कंपनी से ऑफर आई है, मैं उधर चला जाऊंगा, ठीक है. hmm, तो I guess the if I'm the owner of a company, I'm the CEO, the logical outcome should be to give the sponsorship to employee. और उसकी रीज़न ये है बेसिकली कि मुझे उस हैसल में पड़ना कि एक एम्प्लॉय लाऊं ऑन बोर्ड, उसको 1 साल गुजारे, वो देन ही कम्स अप टू स्पीड विद एवरीथिंग. उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गिविंग अ पर्सन sponsorship, hmm. which actually, and in a way you can actually ask them to stick with you for two more years. So अगर मैं उस कंपनी का ओनर होता तो मैं ये कहता कि यार इसको मैं 2 साल और भी रख सकता हूँ, ठीक है, गिविंग बाय गिविंग हिम स्पॉन्सरशिप. वो एक कोई पक्का बॉन्ड नहीं होता उनके साथ दैट यू हैव टू स्टिक विद देम, बट आपने गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि मैं उसको 2 साल रखूंगा. सो यू हैव टू गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 ईयर मिनिमम. तो उस 2 साल में वो एम्प्लॉयर भी आपको इस तरह फारिग नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर भी एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. So Faizan, you mentioned about कि direct job भी हो सकती है या फिर आप already work कर रहे हो उस company के अंदर, they can sponsor you. What kind of companies are those? आप उनको freelancer as a freelancer काम कर रहे होते हो या फिर and also what are the sources where we can find a job? For example, Germany के लिए LinkedIn is one of the best source to do that. In your opinion, what are those sources for Australia? एक्चुअली इस तरह है कि आप अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और आप स्पॉन्सरशिप वाली जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, अगेन लिंक्डइन एक बहुत अच्छा सोर्स है. सेकंड जो है वो सोर्स इंडीड या सीक, ये दो एक बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ पर जॉब जिस पे एडवर्टाइज होती हैं और उस पर आप हर तरह की सर्च कर सकते हैं. काफ़ी सारे जो है ना वो उसमें फिल्टर्स आप लगा के ये सर्च कर सकते हैं कि ये वाला एम्प्लॉय ये जॉब जो है वो स्पॉन्सरशिप ऑफर करती हैं या नहीं करती. आई वोंट से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. There are some companies, there are some people who actually are looking for a right person जो कि उनको यहाँ से ना मिल रहा, ठीक है, और वो they rather sponsor them from Pakistan. Again, स्पॉन्सरशिप का अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी स्पॉन्सरशिप कर देनी है किसी को, तो दैट्स अगेन यू नीड टू हैव द स्किल असेसमेंट एज वेल. तो उसके लिए भी आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को दिखाना है कि इससे 3 साल का या 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है इन देयर ओन फील्ड, जिस फील्ड में आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं.
वो काम बेसिकली आपने करना है, ठीक है. यू हैव टू फाइल योर स्किल असेसमेंट, यू हैव टू गेट योर स्किल असेसमेंट डन, और एंड टू शो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के अंदर, in order to get sponsored. Okay. Um, Fazan, is it worth it to also put a structure to what are the different type of visas we have, or you think you have already covered them, like tourist का हो गया, students का हो गया, skill का हो गया, और job का हो I think I've already covered them. I think they've got you've got a student visa. Student visa में basically bachelor's, masters और PhD. So गया? थोड़ा सा इसको मैं elaborate कर दूं. अगर आप यहाँ पर बैचलर्स के लिए आते हैं और मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपके पास 20 अराउंड अबाउट 20 आवर्स पर वीक आपकी वर्क लिमिट है. बट इफ यू कम फॉर अ PhD, सेम वीजा क्लास के ऊपर वर्किंग लिमिट कोई भी नहीं है, ठीक है. Okay. सिमिलरली अगर आपका स्पाउस जो है वो मास्टर्स के लिए आते हैं और आप उनके साथ आते हैं एज ऑन ऑन डिपेंडेंट वीजा, तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर कोई वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. आपके स्पाउस जो है वो बेसिकली 20 आवर्स के लिए वर्क कर सकती हैं, बट अगर इफ he or she say for example if your missus is coming to do a master's over here and you are coming as her dependent, you don't have any working restrictions, but your missus will have working restrictions for 20 hours. जो कि एक बहुत अच्छा सेटअप है जो नॉर्मली लोग करते हैं कि मिसेस अगर बैचलर्स उन्होंने किया हुआ है तो उनको मास्टर्स में एडमिशन यहाँ दिलाते हैं और खुद जो है ना वो फुल टाइम वर्क के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर वो पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको जॉब्स यहाँ पर मिल भी जाती हैं. थर्ड इज के अगर आप PhD करने के लिए आए हैं, अगर आप PhD कर रहे हैं या आपकी मिसेस PhD कर रही है, तो दोनों के लिए कोई वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है. कोई नंबर ऑफ आवर्स वर्क आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं यहाँ पर. um, इसमें कोई जो है ना किसी किस्म का इशू नहीं है. तो ये तो हो गया स्टूडेंट वीजा का एक बड़ा ब्रॉड सा स्ट्रक्चर. Hmm. द सेकेंड थिंग इज जो PR परमानेंट रेजिडेंसी है उसमें फिर आपके पास एक 189 190 स्ट्रीम आ जाती है जिसमें परमानेंट है. उसमें फिर सेकेंडली आपके पास रीजनल वीजाज आ जाते हैं. um, ये दो सॉर्ट ऑफ टाइप्स हैं टू कम टू ऑस्ट्रेलिया ऑन अ रेजिडेंसी वीजा आई वुड से. तीसरा जो है वो फिर जो है टूरिस्ट वीजा है जो जिस पे आप ऑब्वियसली यू आर नॉट अलाउड टू वर्क हेयर, आप आए Hmm. घूमे फिरें और चले जाएं. अगेन टूरिस्ट वीजा पे इट्स नॉट लाइक अ टूरिस्ट वीजा कि जहाँ पर जिस तरह ज्यादा लोग दुबई में या UAE में जाते हैं टूरिस्ट वीजा पे और वो जॉब ढूंढते हैं और इस तरह. यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते आप ना, बिल्कुल भी अर्न भी नहीं कर सकते, और टूरिस्ट वीजा पे आते हैं और जाते हैं. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस पॉलिसी. तो ये चीज आप सारी चीजें कंसिडर कर करना है. Okay. You mentioned about your spouse. I know, mashallah, you got married and then you also had kids there. उसके बारे में थोड़ा बताएं, how is that process, और वहाँ पे if you have kids उसके लिए what are the advices और क्या process है? अच्छा, अगर इफ यू गॉट अ स्पाउस और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, डिपेंड्स ऑन, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तो यू हैव टू शो अमाउंट ऑफ फंडिंग कि मैं उसको जो अपने स्पाउस है उनको यहाँ पर सपोर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. अगर तो आप PhD करने के लिए आ रहे हैं, सिमिलरली स्पाउस वीजा के लिए यू हैव टू शो योर फाइनेंसेस which should be strong enough to support yourself and your family. Now, एक टिपिकली जो है वो कुछ अमाउंट्स होती हैं जो उन्हें सेट की हुई होती हैं, लोग अपने बैंक अकाउंट में पाकिस्तान में ही दिखाते हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. मैंने अपनी मिसेस का वीज़ा 2018 में ही अप्लाई किया था. शी केम here in 2018. I guess 3 months after I came in here. उसमें आप अपने इन लॉज से, अपने पेरेंट्स से, डिफरेंट लोगों से अपना सपोर्टिंग लेटर्स ले सकते हैं कि वील एक्चुअली सपोर्ट देम फाइनेंशियली. सो मतलब जिस तरह आपके जो फादर हैं वो आपकी मिसेस को बेसिकली लिख के दे सकते हैं कि ओके आई एम रेडी टू सपोर्ट दिस, दिस इज माय बैंक स्टेटमेंट. इसी तरह एक से ज्यादा भी लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि जी मैं इनके फाइनेंसेस बेयर कर सकता हूँ, ठीक है. जर्मनी की तरह या यूरोप की तरह यहाँ पर कोई लॉक्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं है.
इट्स ओनली कि आपको फाइनेंसेस दिखाने हैं अपनी कंट्री के अंदर कि मेरी इतनी स्टेटमेंट है कि मैं इनको सपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ पर बुलाने के लिए। एक ये है मेजर फैक्टर आपके स्पाउस वीजास के अंदर। बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है स्पाउस वीज़ा का। आप सिंपल अपनी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन के अंदर जाके सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, आप ऐड डिपेंडेंट कर दें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा यू हैव टू मेंशन कि मेरे ये भी बच्चे हैं और ये मेरी मिसेस है, बट आई एम नॉट कॉलिंग देम एट दिस स्टेज। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपने उस स्टेज पे नहीं बताया उनको कि जी मेरे बच्चे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट अप्लाइंग इन द सेम एप्लीकेशन विद यू, अगर आपने उस स्टेज पे नहीं बताया उनको तो लेटर जब आप उनको उनको बुलाएंगे या करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। आई थिंक फॉर स्टूडेंट वीज़ाज काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन रेट है यहाँ पर इन द पास्ट 6 to 8 months, Okay. आई वुड से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन रेट हाई हुआ हुआ है यहाँ पर। और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान से स्पेशली एक वन लाइनर आंसर आ रहा है उनका कि the circumstances in your country are not stable and that sort of stuff. So Hmm. it again depends on the visa officer. वो एक बहुत वीक केस को भी जो है वो वीज़ा असाइन कर सकता है और उस पर एक कंडीशन भी लगा सकता है कि, और एक 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 बड़े स्ट्रॉन्ग केस को भी वो रिजेक्ट कर सकता है। एंड रिजेक्शन के बाद नीचे वो एक कंडीशन भी लगा सकता है कि नो फर्दर असेसमेंट। इट मींस कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते उसके Okay. डिसीजन को। Hmm. तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं आज तक के लिए। तो इफ़ यू वेरी श्योर तो आपके अच्छी इंटेंट होने चाहिए और आपको जो है ना वो स्पाउस को आपको दिखाना है कि स्पाउस के जो टाइज हैं वो पाकिस्तान से भी स्ट्रांग है, तो मतलब शील गो बैक टू Hmm. पाकिस्तान। Okay. So what I can extract from this कि अगर आपने अपने spouse को लेके आना है, better go for a job or a skill visa versus a student, क्योंकि students का rejection rate ज़्यादा है for your spouse. इसी तरह मगर मगर प्रॉब्लम इज कि अगर आप खुद स्टूडेंट वीजा पे आए, स्पाउस का रिजेक्शन रेट इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू व्हाट आई वांटेड टू से वाज द रिजेक्शन रेट ओवरऑल फॉर द स्टूडेंट वीजा आजकल Okay. बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है। Hmm. सो इट्स नॉट लाइक स्पाउस या पार्टनर की रिजेक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, टू बी Hmm. ऑनेस्ट, मतलब अगर आपके इस केस में बहुत ज्यादा कोई ब्लंडर है, फॉर एग्जांपल इफ अगर ऑस्ट्रेलिया का कंपेयर करें तो इफ द लाइफस्टाइल फॉर 1 year इज अराउंड 70 लाख अगर आपके बैंक में होने चाहिए और आप 5 या 10 लाख की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो ये लिख के भेज देंगे आपको कि हमने रिजेक्ट किया है इस वजह से क्योंकि आपके पास इनफ फंड्स नहीं। सिमिलरली इफ यू हैव स्पाउस एंड अ चाइल्ड, तो अगर आप दोनों का मिला के अपना एक्सपेंडिचर जो है वो 20 लाख दिखा रहे हैं या 15 लाख दिखा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो ऑब्वियसली इट विल रेज क्वेश्चंस कि भाई ये बहुत ज्यादा कम क्यों है। तो Hmm. नॉर्मली स्पाउस वीजाज एंड इंडिपेंडेंट वीजाज जो है वो बड़े जो है ना सिंप्लीफाइड होते हैं और उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। जो असल इशू होता है वो बेसिकली होता है आपका जो मेन वीजा है, जो मेन वीजा होल्डर है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा मास्टर्स के लिए हो चाहे बैचलर्स के लिए भी हो, पीएचडीज के लिए, रिसर्च के लिए, स्कॉलरशिप के ऊपर आप हैं, तो फिर आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है क्योंकि यू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नोट्स कि भाई इसके पास ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ फंडिंग है। ठीक Hmm. है, तो उसकी वो इतनी रिजेक्शन नहीं करते एज कम्पेयर टू अगर कोई बंदा बैचलर्स के लिए आ रहा है या डिफरेंट कोई छोटे कॉलेज में एडमिशन लेता है। कोई कोई रिनाउंड यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटे कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर बने हुए, उसकी रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है आजकल। अच्छा Fidan, it's a very tricky situation क्योंकि at one place we need to be super honest in our application and the other place we also want to say कि भाई आपके ties to Pakistan are stronger and you tend to go back, right? You're not staying here for citizenship, which is a false statement. क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है they naturally want to be a citizenship. So how to tackle that? I mean, it's a conflicting thing that you have in your application. ये इनकी भी प्रायोरिटीज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जब इनको जॉब मार्केट में शॉर्टेज होती है तो ये डिफरेंट, जिस तरह अभी वर्किंग आवर्स इन्होंने जो है ना वो इंक्रीज कर दिए थे, डिपेंड्स ऑन देयर स्किल रिक्वायरमेंट एज वेल। तो ये थोड़ा सा अपनी दे टेंड टू चेंज देयर टोन एंड नंबर ऑफ वीजास दैट दे ग्रांट। ठीक है, इसमें इस तरह है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया
आ रहे हैं, तो वीजा एप्लीकेशन के अंदर बेशक, और दो उनको भी पता है, आपको भी पता है कि द एंड गोल इज टू गेट सिटीजनशिप और टू गेट अ गुड हम्म, जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। हम्म, बट आपने अपने कंट्री से टाइज स्ट्रॉन्ग शो करने, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेनिफिट, अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस शो करने अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रीजन शो करनी है फॉर गोइंग इनटू दैट प्रोग्राम। ठीक है, जिस तरह बिल्कुल। अगर आप मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, ठीक है, आपने बताना है कि भाई मेरा ये वाली फील्ड है, मैं 1-2 साल इसमें नौकरी भी कर चुका हूँ, या मेरा बैचलर्स इसके अंदर था, और अब मैं स्पेसिफिकली इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम चूज किया। ठीक है, ठीक है। तो अम, ये चीज आपको दिखानी जरूरी है कि भाई ये मैं I'll come here for studies only and I won't work, और मेरे पास अपने फाइनेंशियली सपोर्ट करने। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को ये भी पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके बगैर इनकी इकोनॉमी नहीं चल सकती, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ डिलीवरी जॉब्स और नॉट जॉब्स। और स्टूडेंट्स वाला फैक्टर इसमें से निकाल दें, अगर आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब वर्किंग आवर्स बिल्कुल भी अलाउड है, ठीक है, हम्म। तो दे इनकी जो पूरी इकोनॉमी है, जो इनका पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा हिट होगा इस डिसीजन से। I think it's. I also mentioned in my last podcast with Ansari around. You can find the link over here if you want to know about that. एक तो structure of the visas is pretty much similar. And this also shows, and I think it is worth knowing for anybody going abroad that these countries need us. जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान से यार ब्रेन ड्रेन हो रहा है या यूथ हमारा बाहर जा रहा है, इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर दैट कंट्री। दो पाकिस्तान में हम कहते हैं यार रेमिटेंस आ रही है तो इट्स अ सोर्स ऑफ रेमिटेंस फॉर अस एनीवेज, बट go with the mindset कि यार these countries need us, right? जब आप उस कॉन्फिडेंस से जाते हैं then your intent and your application automatically comes a bit strong. And also for the audience, let us know if you have more questions around visas or whatever situation you have, and we can also answer that in the comment. Fidan, maybe let's spend next 15 minutes around a bit of culture or वहाँ पे scene क्या है Australia में itself when you're living as a Pakistani or any other nationality as well, right? Have you faced any racism being a non-OZ there? देखिए, रेसिज्म का जो है ना वो फैक्टर कहीं से भी आप जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी कंट्री में भी। इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, आप चाइनीज को देखते हैं, लोगों को यू काइंड ऑफ थिंक अबाउट, अगर कोई चाइनीज यहाँ से इस्लामाबाद में आपको 4-5 नजर आ जाए इकट्ठे, तो आप उनके बारे में भी सोचते हैं कि शायद जो है ना ये हमारी इन्होंने जॉब्स पे कब्जा कर लिया और ये सारी मार्केट पे कब्जा कर लिया, इस तरह। दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल। ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी बात ये है, आई वुड से, कि जनरली इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है, ठीक है, रेसिज्म को। ये इवन टर्म, रेसिज्म की जो टर्म है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट आई कैन यूज, इन जनरल आई कैन नॉट इवन यूज दिस टर्म। तो ये इतनी ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस है, ठीक है। Hmm. um, और वो आपको रेसिज्म डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप में नजर आएगा, मगर जिस लिहाज से यूएस में या यूके में या अदर कंट्रीज में आपको रेसिज्म डायरेक्ट नजर आता है, वो इस तरह डायरेक्टली आपको नहीं, कोई मतलब मुंह पे आके आपके नहीं बोल सकता, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड वेरी ऑफेंसिव। अगर आपका वो बात उस बंदे को, वो करेगा भी, वो एक बंदा रेसिस्ट है, उसकी आदत है, वो इस तरह बात करता है, वो करेगा भी, ठीक है। और Hmm. मे बी लॉट ऑफ पीपल आर ड्रंक एंड दे टॉक अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। काफी दफा इस तरह की सिचुएशंस हुई हैं कि जहां पर इस तरह की बात या स्लैंग या लैंग्वेज लैंग्वेज इस तरह यूज हुई है, जो कि एक बड़ा रेसिस्ट उसमें जो है ना वो वाइब थी, या काफी दफा मुझे कहा है कुछ लोगों ने। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है ना वो इग्नोर दैट पर्सन, पहली तो बात Okay. ये। और अच्छी बात मैंने आपको ये बताई है कि अगर 5 लोग खड़े होंगे ना और एक बंदा को इस तरह की बात करेगा, तो बाकी 4 लोग बेशक वो भी रेसिस्ट होंगे, बट they'll एक्चुअली कंडेम है। तो Hmm. यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का एक जो मैंने चीज जो फील की है, ट्रेवल अ लॉट इन ऑस्ट्रेलिया, जनरली इसको बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है रेसिज्म को, ठीक है, Okay. जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक स्कूल्स के कल्चर में जो है वो बच्चों बच्चे डिफरेंट कल्चर से साथ पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चों में भी एक ये चीज अब ब्रॉटअप में, बच्चों के ब्रॉटअप में आ रही है कि जी आपको डिफरेंट कल्चर्स के साथ मिल के रह के चलना है।
इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि यहाँ पर इनके जो अपने जो लोग थे ओरिजिनली एबोरिजिनल्स जो हैं वो भी तादाद उनकी कम होती जा रही है। उसके बाद जो यूके से आए जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो आगे जो जनरेशन्स हैं um, वो भी बहुत वो हैं काफ़ी ज़्यादा। बट पॉइंट इज के ये कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा मल्टी कल्चरल हो चुकी हैं कि अब वो वाले जो फैक्टर हैं रेसिज्म के ना वो काइंड ऑफ एलिमिनेट हो जाए। हम्म, लोगों के एक्शंस में आपको नजर आएगा डे टू डे। से फॉर एग्जांपल इस तरह है कि आपके आगे कोई बंदा खड़ा हुआ है लाइन के अंदर एक ग्रोसरी स्टोर पे। um, उसको वो बंदे ही कहती है गुड डे है, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स गोइंग, हाउ आर थिंग्स विद यू, और मतलब डिफरेंट ग्रीट करती है, चीजें पूछती है उससे। आप जाते हैं, आपका वो खाली सामान डालती है, हम्म, ठीक है, और आपको आपको कहती है कार्ड और कैश, ठीक है, एंड यू से कार्ड एंड देन शी ओके बाय थैंक्स हैव अ गुड डे, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको काफी सारी जगहों पे काफी सारे जेस्चर्स से फील होगा कि यार ये एक बड़ा रेसिस्ट एटीट्यूड है। हम्म, बट मैं जनरली यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जस्ट मूव ऑन, जस्ट लाइफ लाइफ जस्ट गोज ऑन। मतलब अगर आप इस तरह की चीजों के बारे में सोचना शुरू हो गए और हर चीज के बारे में टची हो गए, देन योर सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर, ठीक है। तो हम्म, ये डे टू डे रेसिज्म तो बहुत ज्यादा हमें फील होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी एक इनडायरेक्ट रेसिज्म की। डायरेक्ट रेसिज्म बहुत कम है, हम्म, कुछ एरियाज में होगा, बहुत ज्यादा होगा, बट इन जनरल ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा जो है ना वो रेसिज्म, आपको डायरेक्ट रेसिज्म जिसमें कोई डायरेक्टली आके आपको इस तरह की ऑफेंसिव बात करे, बहुत हाईली अनलाइकली कि इस तरह का कुछ सिचुएशन बने आपके साथ। इट्स अ इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि पाकिस्तान में रहते हुए भी देयर वुड बी डिफरेंस बिटवीन पीपल, राइट? वो आपको फील शायद पाकिस्तान में होते भी आएगी, सो डोंट बॉदर अबाउट इट एंड जस्ट move on with that, right? बिल्कुल um on, बेसिकली। on that on that side, I would like to ask what are your advice around how to connect with local people, because I believe local networking is always very useful. आई गेस जो लोग जिन लोगों को थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पता है वो इस बात से एग्री करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का शायद पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी कल्चर है। Hmm. तो ये ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉफी ड्रिंकिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर इसको हम कहते हैं इन ऑस्ट्रेलिया इट्स अ कॉफी कल्चर, ठीक है, कि लेट्स मीट ओवर अ कप ऑफ कॉफी। इट्स अ वेरी कॉमन लाइन इन इन ऑस्ट्रेलिया। कॉफी का शौक भी बहुत ज्यादा है इनको। तो जो एक कनेक्टिंग चीज होती है वो बेसिकली है कॉफी, ठीक है। एंड पीपल डोंट माइंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑन कॉफीज, डे टू डे कॉफी, दे स्पेंड अ लॉट ऑन कॉफीज। किसी के लिए एक कप, दो कप, टू कप्स, दे डोंट माइंड कि कहीं से $1 की मिल रही है और कहीं से $6 की मिल रही है कॉफी, ठीक है। तो दे वुड गो फॉर द $6 एवरी डे, ठीक है। तो इतनी ज्यादा कॉफी जो है ना वो पी भी जाती है यहाँ पर। और उसके अलावा मतलब लोगों को बॉन्डिंग जो है वो एक फैक्टर है कॉफी। Hmm. सो इट्स जस्ट अ सिंपल लाइन, लेट्स मीट ऑन अ कप ऑफ कॉफी। सो इट्स अ वेरी कॉमन बॉन्डिंग लाइन विद द कल्चर। द अदर थिंग इज जो कि हमारे पाकिस्तानी या उसमें डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज में इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है, या तो सर्फिंग का या फिशिंग का। तो इसमें से जो आपको दोनों में से बेहतर शौक है, फिशिंग बहुत ज़्यादा एक Okay. बॉन्डिंग सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिन डूइंग फिशिंग सिंस लास्ट आई गेस 4 years और 5 years। तो उससे आपको बहुत सारे नए लोग मिलते हैं, आप कनेक्ट करते हैं। इट्स नॉट एक्सपेंसिव एक्टिविटी एट ऑल ओवर हियर। बट ये एक बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है जिसमें आपको लोग उस चीज़ों के बारे में पूछते हैं। फिर फिशिंग से आगे बोट है, अगर इफ़ यू वांट टू बाय अ बोट, इफ़ यू वांट टू गो टू नेक्स्ट स्टेप। उसके अलावा सर्फिंग, आई हैवंट हैड एक्सपीरियंस टू डू सर्फिंग माई सेल्फ बिकॉज उसके लिए काफ़ी जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में शार्क्स भी जो है ना वो हर जगह, Hmm. शार्क अटैक्स बहुत कॉमन है ऑस्ट्रेलिया में। Hmm. तो उसका मुझे अभी जो है ना वो इतना नहीं है। बट दीज आर द फ्यू थिंग्स जिससे आप लोकल कम्युनिटी के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। नाउ आई बीन टू अदर प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। एक जो बहुत कॉमन यहाँ पर है, आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, सो जस्ट अ बाउ इज कनेक्टिंग पॉइंट। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये कल्चर बहुत ज्यादा कॉमन है कि एवरी वन वुड डू जस्ट लाइक दिस।
They bow their head and say, they don't need to say anything, Hmm. right? अगर आप गाड़ी पे किसी को क्रॉस कर रहे हैं and you want to say hi, so आपके स्टीयरिंग के ऊपर हाथ है और you'll just do like this Hmm. and the other person will do like this. You don't know that person. So ये एक बड़ा जो है ना वो मतलब जब कोई भी आपको गुजरते हुए अगर स्पेशली इफ यू आर विद किड्स, I would say 7 out of 10 people who'll actually cross you would actually look at you and say hi. और ये कल्चर इनका बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब कि कॉमनली जो है ना एज अ नेशन ये जो है ना वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. गुड डे, गुड डे इज लाइक गुड डे इज लाइक द स्लैंग फॉर गुड डे. सो गुड डे कह देंगे, हे गुड डे माइट. सो ये इनका है एक सिस्टम इस तरह का. तो ये कुछ बॉन्डिंग जो है ना वो फीचर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के, वो आप बेसिकली यहाँ आके ही सीखते हैं. बट ये कि दीज आर द फ्यू थिंग्स जिससे आप इनके कल्चर के अंदर ब्लेंड हो सकते हैं. Okay, brilliant. I think a lot of communication networking goes through gestures itself, which is interesting to know. I didn't know about the coffee culture. I knew about Italians who like to have a lot of espresso, and I personally experienced that as well. But I think it's a good new find. And when you talk about fishing, I guess they're also quite fond of barbecue and all those and grilling the fish as well. I think that's also a good opportunity to bond बिल्कुल. together with the local as well. Going in the same direction, what are the other things, or maybe what are the culture norms that we have in Australia that one should be aware of, or also be respectful of when you're going to Australia as an outsider? So cultural norms, you you should if you ask in terms of what is the culture over here, or you're talking about what are the things that you should actually follow as a person coming from outside. So, for example, in Germany, mein, it is very common to blow your nose, but in Pakistan, you will never do that in public or somebody in front of somebody, right? कोई ऐसी चीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में you can do, but you cannot do that in Pakistan. या बहुत सारे. सबसे पहली चीज तो ये है कि यू कैन रोम अराउंड विद iPhone 14 in your hand in Australia, whereas you cannot do that in Pakistan. तो सबसे एक चीज तो ये डिफरेंस है. बट ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं. सबसे पहली जो चीज़ वो जो मैं मेन डिफरेंस फील कर सकता हूँ कि नो वन एक्चुअली जजेस यू बाय व्हाट यू वेयर, ठीक है. Hmm. मैं इट्स बिन अ रूटीन फॉर मी सिंस लाइक अ फ्यू इयर्स कि मैं हमेशा हर फ्राइडे को आई वेयर शलवार कमीज, ठीक है. तो मैं अपने घर से लेके पूरी यूनिवर्सिटी क्रॉस करके मस्जिद जाता हूँ और मस्जिद से वापस आता हूँ और शलवार कमीज मैंने पहनी हुई होती है. तो आई डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ कि यार ये मैंने शलवार कमीज क्यों पहनी हुई है या इसमें अच्छा नहीं लग रहा. एक दफा कोई बंदा यूं देखेगा और दैट्स अबाउट इट, ठीक है. Okay. ना कोई बंदा आपको ऊपर कमेंट कर सकता है कि आपने कोई चीज क्यों पहनी हुई है, क्योंकि इनकी अपनी जो ड्रेसिंग है वो भी इसी तरह. मतलब दे वेयर 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 शॉर्ट्स टू वर्क. इनके जो हम जिसको चप्पल कहते हैं उसको ये फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं या टोंग कहते हैं. तो वो दिल वेयर फ्लिप फ्लॉप्स टू 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 वर्क. और जो है ना ड्रेस टू डे वाली भी पॉलिसीज हैं यहाँ पर. मतलब अगर आपने बिल्कुल कैजुअल है तो आप बिल्कुल कैजुअल बनकर आ सकते हैं. um, तो इसलिए ये चीज मैं एक बड़ी फील करता हूँ कि आपके ड्रेस कोड के ऊपर कोई बंदा भी कमेंट नहीं करेगा. इट्स बिन अ वाइल सिंस आई एक्चुअली वोर अ ड्रेस शर्ट, ठीक है. क्योंकि बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में तो ये अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको यही पहनना है. बाकी अगर आप किसी उसमें जा रहे हैं इवेंट या फंक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं करते इस चीज़ के बारे में कि व्हाट द पर्सन इज वेयरिंग. और व्हाट स्पेशली अगर आपके पास एक iPhone 14 है या लेटेस्ट मॉडल iPhone है, नो वन केयर्स अबाउट दिस, क्योंकि हर चीज़ जो है वो प्लान के ऊपर निकली हुई होती है. शायद आप उसके अगर वो $3,000 का फ़ोन है तो आप शायद उसके $100 दे रहे होंगे पर मंथ, ठीक है. तो नो वन रियली केयर्स अबाउट योर फोन एंड दे डू नॉट judge you by what you wear and what sort of phone that you use. गाड़ी के बारे में मैं सेम नहीं कहूँगा
क्योंकि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी फरारी टाइप गाड़ी है तो ऑब्वियसली पीपल विल लुक एट यू एंड से ओके, हाँ कि यार ये आपके पास बड़ी अच्छी गाड़ी है। नॉर्मली एसयूवीज यहाँ पर बड़ी कॉमन है, अराउंड लाइक 50-60 थाउजेंड के अंदर अंदर अगर आपके पास गाड़ी है तो नो वन एक्चुअली बॉदर्स के यार तुम्हारे पास $5,000 की गाड़ी है या $50,000 की गाड़ी है। हाँ अगर आपके पास कोई बहुत कोई फरारी टाइप या कोई लैम्बोर्गिनी टाइप आपके पास कोई लग्जरी कार है, देन पीपल एक्चुअली ओके से यार बड़ी अच्छी गाड़ी है तुम्हारे पास। बट yeah, that's one Um, of the main difference. one very curious question, Fazan. Why is Australia good in most of the sports that they play? ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत बड़ा जो है ना वो एरिया है, पहली बात Mm, ये। और इसको मैं बात को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इफ यू कम टू ऑस्ट्रेलिया आपको हर आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स यू फाइंड अ वेरी बिग ग्राउंड। Now they can convert it for footy, which is Australian word for American football. mm, They can convert it into a cricket ground. They can convert it into a soccer field. जिस तरह आपने सुना होगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। mm, उसको वो दैट्स नॉट ओनली ऑल्सो इट्स कॉल्ड एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, बट इट्स नॉट ओनली यूज फॉर क्रिकेट। सो उसको उनके बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके फाइनल्स होते हैं उसके लिए वो लोग यूज करते हैं। mm, um, इसी तरह अगर आप इफ यू कम टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है और इस लिहाज से उन्होंने स्पोर्ट्स को स्पोर्टिंग फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं इनके पास। अम, आपको बहुत छोटी एज से बच्चे को यहाँ पर किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। okay. एंड और जो उसमें कोचिंग है हर स्पोर्ट्स में स्कूल लेवल से कोचिंग, मतलब दे हैव गॉट वेरी गुड कोचेस। और बहुत ज़्यादा कोचेस इसमें इस तरह हैं जो Mm, लोग प्रोफेशनल लाइफ में कुछ और करते हैं। जिस तरह आई नो आई हैव गॉट अ फ्रेंड, वो एक्चुअली आईटी में और 9 to 5 जॉब करता है, बट सैटरडे और संडे को वो कोचिंग करता है। वो बच्चों की अप टिल 5 और 6 ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको mm, सॉकर सिखाता है वो, ठीक है, फॉर फ्री। फॉर फ्री, ही डजंट चार्ज देम एनीथिंग। तो mm, बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं कल्चर के अंदर इनके कि वो स्पोर्ट्स को जो है ना वो प्रमोट करती हैं। इसलिए इस वक्त आप देखें तो इनकी इवन विमेन स्पोर्ट्स जो है वो भी इस वक्त टॉप में। अभी इनकी जो मेटिल्डाज हैं वो दैट इज बेसिकली ऑस्ट्रेलियाज विमेन सॉकर टीम। तो अभी मेटिल्डाज फाइनल्स तक पहुंची, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम, वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची। सिमिलरली स्विमिंग में आप देख लें अभी नंबर वन गोल्ड मेडल लिए, टेनिस में आप देख लें, क्रिकेट ऑब्वियसली एवरीवन नोज। तो बहुत सारी इस तरह की स्पोर्ट्स हैं जिसमें अभी आजकल रग्बी का, जिसको हम यहाँ पर फुटी कहते हैं, उसका वर्ल्ड कप हो रहा है या कोई 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 टूर्नामेंट हो रहा है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ वर्ल्ड कप। mm, उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑस्ट्रेलियन टीम। तो बहुत सारी स्पोर्ट्स में ये लोग इन्वॉल्व हैं। mm, एज आउटसाइडर हम लोग हमेशा से ये सोचते थे कि ऑस्ट्रेलिया इज ए बिग क्रिकेटिंग नेशन। टू बी ऑनेस्ट जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपको पता ही ये लगता है कि ये क्रिकेट क्रिकेट में इतना ज्यादा इनको शौक ही नहीं, ठीक है। इनको आई वुड से इफ आई रेट ऑन ऑन अ स्केल तो क्रिकेट जो है ना वो इस वुड बी समवेयर अराउंड द थर्ड और फोर्थ मार्क। तो जो पहली चीज जिसमें इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो फुटी है, जो mm, अगेन जिसको हम अमेरिकन फुटबॉल भी कहते हैं, जिसको रग्बी भी कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो उसमें इनको बहुत ज्यादा और सी के इनके टूर्नामेंट्स होते हैं, इनकी डिफरेंट टीम्स हैं, और बहुत बड़े बड़े ग्राउंड उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं और वो इनके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर स्विमिंग का इनको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से आई वुड से मतलब हर थोड़े एरिया के बाद यू विल फाइंड अ वेरी बिग स्विमिंग पूल। रॉक पूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं जो कि बेसिकली जो सी का पानी आ रहा है उसी में से इन्होंने काफ करके रॉक्स को और पूरा पूरा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है विच इज फ्री फॉर पब्लिक, mm, ठीक है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो इन्होंने यूटिलाइज करके स्पोर्ट्स को प्रमोट किए। और फिर स्पोर्टिंग इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग थिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज। मतलब आप mm, कोई बच्चे हैं तो यू हैव टू बी इन स्पोर्ट्स, ठीक है। mm, तो इससे ये होता है कि इनकी जो नेशन है या यहाँ पर जो बच्चे जो बिल्ड होते हैं वो ओवरऑल लिथार्जिक नहीं है, ठीक है। mm, तो कोई ना कोई जो है ना, इसीलिए वजह से इनका बिल्ड स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, इनके फिजिक बहुत अच्छी है।
अभी मेरी सिटी में साइकिलिंग का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, वो आई गेस टूर डी फ्रांस के बाद सेकंड नंबर पे जो है साइकिलिंग का कंपटीशन था, और उसमें पूरे दुनिया से साइकिलिस्ट आए हुए थे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है साइकिलिंग में, अगेन देर देर ऑलमोस्ट देर वेरी गुड, इंटरनेशनली भी बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में। तो आप इफ़ यू गो ऑन अ संडे मॉर्निंग, अगर आपको कभी चांस मिले तो संडे को सुबह 6 या 7 बजे ऑन मोटरवे या हाईवे के साइड पे आपको साइकिलिस्ट ही साइकिलिस्ट नजर आएंगे, ठीक इंटरेस्टिंग। है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि यार हम लोग 11-12 बजे उठते हैं संडे को, और ये जो है ना सुबह 6 बजे साइकिल लेके निकल जाते हैं संडे वाले दिन अपने, इनका दैट्स इज देयर थिंग। तो अच्छा। इसलिए ये अच्छा, फिलहाल मेरा जो पर्सनल इंटरेक्शन रहा है ऑस्ट्रेलियंस के साथ, आई हैव आल्सो लर्न कि दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड देन दे यूज दैट टू देयर एडवांटेज, और वो गेम के दौरान आपको मेंटली चैलेंज करते हैं। आई थिंक अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी पीपल वुड एक्सपीरियंस दैट इन द क्रिकेट। वो हमेशा माइक में आपको आवाज आ रही थी, या तो विकेट कीपर या साइड में वो बैट्समैन को प्रेशर करने के लिए दे आर ऑलवेज टीजिंग देम, राइट। आई पर्सनली एक्सपीरियंस के जब आप टेबल हॉकी हम ऑफिस में खेलते थे तो देयर वाज ओनली वन ऑस्ट्रेलियन देयर, और वो बातों से ज़्यादा हराता था और अपनी स्किल से कम हराता था। तो हाउ इज दैट मेंटल स्ट्रेंथ बीइंग बिल्ट इन ऑस्ट्रेलिया? इसमें ये मैं बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से ये बात करूंगा कि जो एक स्पोर्ट्स आपको एक बहुत स्मॉल एज से, अगर आप एक जो है से फॉर एग्जांपल 5 से 6 साल का जो बच्चा है जो शायद क्लास 1 के अंदर जा रहा है, उस एज से अगर वो एक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है और उसकी ग्रूमिंग हो रही है एक ही स्पोर्ट्स के अंदर, तो आप ये सोचें कि एज अ टीम जब ये लोग खेलते हैं, पहली तो बात ये है कि ज्यादातर इसमें ये होता है कि एक लेवल तक विनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। जब बच्चे खेलते हैं आपस में, आई गेस देयर इज अ स्पेसिफिक एज के जहां तक जो है विनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 2 गोल हो गए आपके 4 गोल हो गए, इस तरह नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। वो काफी मतलब बाद में जाके बच्चों को कहते हैं कि जी ठीक है आप कंपटीशन का है। दूसरी बात इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आप एक छोटी एज से ये खेलते आ रहे हैं एक स्पोर्ट्स, और उसमें आप इतने अच्छे हो गए, वेल टू डू, जो कोचेज हैं उन पे बहुत ज्यादा ये चीज डिपेंड करती है। और ये चीज आपने बिल्कुल सही कही है कि ये जो कल्चर है ये इस तरह का बना आ रहा है कि वो जो कोच है ऑब्वियसली दिल भी एजेड, और वो उनसे बड़े होंगे जो जो कोच कर रहे हैं लोग, और उन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई होती हैं, वो चीज जो है वो इंजेक्ट करते हैं एक छोटे लेवल के बच्चे के अंदर, ठीक है, कि वो एग्रेशन और वो सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स के, वो स्पोर्ट्स को बड़े सीरियस लेते हैं ऑस्ट्रेलियंस। तो ऑस्ट्रेलियन जो भी स्पोर्ट्स खेलेंगे दे टेक इट वेरी 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 सीरियसली, ठीक है। इस वजह से वो स्पोर्ट्स के अंदर एग्रेशन भी आता है, और वो एग्रेशन जो है वो बेसिकली आप से फॉर एग्जांपल आप टेनिस में देखें, जो इनका टेनिस स्टार है वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, और लोग उसको यही कहते हैं कि उसकी एग्रेशन की वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है कि अगले बंदे को कुछ ना समझना, विच इज गुड टू सम एक्सटेंट कि अगर अगर आप जो है ना अपने लिमिट से आउट नहीं जा रहे, ठीक है, और आपके जो है ना स्पोर्ट्स की बाउंड्रीज जो है वो आप क्रॉस नहीं कर रहे, तो ये इनके अंदर एक नेचुरल चीज है जो इंजेक्ट होती है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स के अंदर आपको नजर आएगी कि ऑस्ट्रेलियंस के अंदर एग्रेशन है, बिकॉज देव गॉट दिस सेंस ऑफ बीइंग ऑन द फ्रंट फुट एंड बीइंग ऑन द टॉप। बिकॉज आप देखें कि जब आपकी कंट्री जो है वो एक जो है वो इतने सारे वर्ल्ड कप्स जीतती आ रही हो, स्विमिंग में भी नंबर 1 हो, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट स्विमर होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमारे पास जो है ना वो फॉर एग्जांपल इतनी सारी हमने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस भी होता है जो कंट्रीज के अंदर होता है, और वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजों में दे आर ऑन नंबर 1। ओके, वेरी नाइस। आई ऑल्सो हर्ड फैजान के पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज टू हैव। व्हाट आर अदर एडवांटेजेस पाकिस्तानीज हैव व्हेन दे मूव टू ऑस्ट्रेलिया? सो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इट्स अ फेयर स्टेटमेंट टू से कि um, पाकिस्तानी लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं, बट देन अगेन व्हाट हैपन इन सिंस 1 जुलाई दिस ईयर, कि जिस जो बंदा 1 जुलाई के बाद आएगा, अब ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो उसके लिए दे हैव टू मेक एन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस इन फर्स्ट 6 मंथ्स। तो ओके। स्टेट टू स्टेट ये रूल्स वेरी करते हैं। कुछ स्टेट्स में ये लीनियंसी थी
कि आप जो है वो लाइसेंस पे चला सकते थे पाकिस्तान में, बट आई गेस अब बहुत कम स्टेट्स हैं जिसमें आप फुली आप उस लाइसेंस के ऊपर चला सकते हैं। बट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स यस यू कैन ड्राइव। दूसरी जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है वो है कि यहाँ पर भी राइट एंड ड्राइव है, हमारे पाकिस्तान में भी राइट एंड ड्राइव होती है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि आपको कुछ रोड रूल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो चीज़ें आपको खाली अडाप्ट करनी होती हैं। तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में आपको फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक Okay. है। um, दूस एक बात ये है कि फर्स्ट 6 मंथ इफ यू आर अलाउड टू ड्राइव यू कैन कम हेयर बाय अ कार फॉर वेरी वेरी बाय अ वेरी चीप कार, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन learn to drive here as well, follow all the rules and regulation, and in the first 6 months you can actually go and sit in the test. इनका ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी बना सकता है, इट्स इजी प्रोसेस। ड्राइविंग टेस्ट मुश्किल है, यस मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम 2 दफा में पास कर लें, 3 दफा में पास कर लें, वंस यू गॉट ड्राइविंग ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस दैट गोज ऑन, फिर आप चाहे 5 साल यहाँ पर ड्राइव करें फिर आपको कोई भी नहीं कुछ पूछेगा। ट्रांजिशन आप कर सकते हैं बहुत आराम से, अगर आपके पास 3 साल पुराना पाकिस्तानी लाइसेंस है या इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप उसको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं बाय गिविंग अ टेस्ट एंड driving knowledge test and a driving test. Okay. Understood. Um, Another very curious question. Do people also complain about high taxes in Australia? And maybe adding that up with कि वहाँ पे अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो उसका क्या सीन है, मे बी अराउंड अमेजोन है। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो इस वक्त टैक्स जो है वो, यस डेफिनेटली टैक्स ऑस्ट्रेलिया में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द टैक्स एक चीज़ जो लोगों को कॉमनली नहीं पता होती कि ये है कि आपको एक सुपर एनुएशन है वो आपकी सैलरी में से कटता है, या अगर इफ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी तो वो एम्प्लॉयर ने बेसिकली आपको पे करना होता है। मगर अगर वो नहीं पे कर रहा तो आपको पे करना है वो सुपर एनुएशन विच इज 11% ऑन टॉप ऑफ द टैक्स। सो टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स हैं, नॉर्मली आजकल जो टैक्स चल रहा है वो अराउंड मिनिमम जो स्टार्टिंग है दैट इज 19%, ऑन एवरेज जो है वो 35-37% टैक्स होता है लोगों की सैलरीज के ऊपर। तो 30 to 35% आप टैक्स कर लें, और प्लस अगर आपका सुपर एनुएशन इंक्लूडेड नहीं है आपकी सैलरी के अंदर देन यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट एज वेल, ठीक है। नॉर्मली अच्छी जॉब्स में सुपर एनुवेशन वो अलग से देते हैं, हाँ एम्प्लॉयर देता है, और टैक्स आपकी सैलरी में से करता है। ओके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी है बिफोर कमिंग हेयर ऑन ऑन अ सैलरी। तो सुपर इनोवेशन बेसिकली मीन्स कि डेवलपमेंट सुपर करने के लिए जो। एनुवेशन, हाँ सुपर एनुवेशन बेसिकली एक फंड है, वो आपका ही फंड है, इट्स लाइक अ प्रोविडेंट फंड जो आपकी अमाउंट आपकी सैलरी हर सैलरी में से हर बंदे की कटेगा यहाँ पर, और वो आपको 65 ईयर्स ऑफ एज पे आप एलिजिबल होंगे उस फंड को यूज करने के लिए, ठीक है। ओके। तो 65 ईयर से पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते, अगर आप वो लेके जाना चाहते हैं वो ले जाएं, आप रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दें, उसमें काफी सारे पैसे आपके कट जाते हैं, और फिर आपको वो मिल जाते हैं, बट यू कैन नॉट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया अगेन। तो ओके। अगर आप 65 ईयर से पहले उसको इनकैश कराना चाहिए, अच्छा। तो नॉर्मली ये है कि 65 ईयर्स की एज के ऊपर जो कि रिटायरमेंट की एज है ऑस्ट्रेलिया में, उस पर आपको वो पैसों की एक्सेस होती है ओके। इन एंड पैसों। व्हाट अबाउट द बिजनेस? बिजनेस में इस तरह है कि बिजनेस की बहुत अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट वीजा के ऊपर भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का एक्सपीरियंस लें, थोड़े पैसे अपने जमा करें और अपना फूड ट्रक खोलें, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल या कुछ छोटी शॉप लेके उसमें आप जो है ना रोल्स बनाएं, या जो भी डिफरेंट चीज़ें आप शवरमास बना सकते हैं, डिफरेंट कबाब हम उसको यहाँ पे करते हैं वो आप सेल कर सकते हैं। बिजनेस में वेरी इजी टू सेटअप, आपको ABN होता है एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, वो आपको चाहिए टू सेटअप अ बिजनेस। सारा कुछ ऑनलाइन है, आपको अपनी सारा कुछ जो है वो शो भी उनको करना होता है ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। बट द गुड थिंग अबाउट बिजनेस इज इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन सेट अप योर ओन बिजनेस। Okay. Nice. Um, to wrap it up and on the last question for the day,
in big cities usually rent बहुत high होते हैं. For example, Berlin में भी, London, New York वगैरह. How is it in Australia? And big cities का क्या scene है, और how much of a rent you usually have to pay? सो डिपेंड्स ऑन अगर आप फैमिली के साथ हैं या इंडिविजुअल हैं. सो इस वक्त हाउसिंग का बहुत बड़ा क्राइसिस है, स्पेशली बिग सिटीज में और आउटस्कर्ट्स में भी. तो आप अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं या तो आपको नॉर्मली जो है वो बड़ी सिटी के अंदर 500 जो है वो 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर वीक आप अपने माइंड में रखेंगे इतना आपको रेंट देना पड़ सकता है. ठीक है, ये मिनिमम वाली साइड पर मैं बता रहा हूँ. नॉर्मली इससे ज़्यादा भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन वेयर यू प्लान टू लिव. अगर स्टेशन के साथ और स्कूल्स के साथ घर होगा तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा महंगा होगा. तो ऑन एवरेज 400 500 मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है घरों की. ठीक है. घर नहीं है, ये छोटे अपार्टमेंट्स और यूनिट्स हैं. ठीक है. अगर आप थोड़े से आउटस्कर्ट्स पे चले जाएं, ठीक है, तो आपको शायद 350 400 तक भी शायद मिल जाए इफ यू वेरी लकी. बट अगेन मसला ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक घर के पीछे 10 10 लोग जो है ना एप्लीकेंट्स हैं. तो हाउ यू विन दैट रेस, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी. बट ये है कि इस वक्त हाउसिंग का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओवरऑल. छोटी सिटीज़ के अंदर अगर आप जाएं तो यही चीज़ जो आपको 500 की मिल रही होगी ये शायद 400 की मिल जाएगी. ठीक है. फायदा आपको सिर्फ ये होगा कि जहां पर बड़ी सिटी के अंदर 10 एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, और छोटी सिटी के अंदर शायद 3 या 4 एप्लीकेंट्स हैं उस घर हम्म. के लिए. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको सारी कंसिडर करनी है कमिंग एज अ फैमिली. एज अ इंडिविजुअल आप यू कैन लिव इन अ शेयर्ड हाउस फॉर अराउंड 150 $200. ये स्टार्टिंग प्राइसेस हैं तकरीबन. इससे कम मिल तो जाएगा शायद, उसमें फिर आपको शेयर्ड रूम होगा या इस तरह की चीज़ें होंगी. तो ये आपको स्टार्टिंग प्राइसेस मैंने थोड़े से बता दिए कि ये इंडिकेटिव प्राइसेस हैं जिन जो जो यहाँ पर हाउसिंग की सिचुएशन है उस तरह. बट द बिगेस्ट फैक्ट इज कि इस वक्त हाउसिंग क्राइसिस है और घर या टेनेंसीज या अपार्टमेंट्स लोगों को मिल नहीं रहे टू रेंट. ओके. तो सेविंग हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में काम करते हुए या रहते हुए? Depends on where you're living and how you're spending. So I categorize saving as how you spend. ठीक है. हम्म. It's for me saving is more like saving more depends on how you spend your money. ठीक है. तो अगर आप कोई कोई रीजनेबल जगह पे रहें, ठीक है, और वहां से अपनी कैलकुलेशन करें कि यार मेरी डेली की कम्यूट की क्या चीज़ें हैं. मतलब मैंने ट्रेन पे जाना है तो ट्रेन का एक्सेस मेरी गाड़ी से कितना दूर है, और गाड़ी की पार्किंग कितने के मुझे पैसे देने पड़ेंगे. तो ये आप डे टू डे चीज़ें जब आप चीज़ एनालाइज करते हैं, um, और आप अपनी स्पेंडिंग कैलकुलेट करते हैं बेसिकली. अगर आपने आपको आप वो स्पेंडिंग के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लें तो आपकी अच्छी सेविंग हो सकती है. ठीक है. हम्म. देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन how much you're earning and how much you want to earn. But अगर आपकी स्पेंडिंग अच्छी है, हम्म. और आप लॉजिकली चीज़ों को लेके चलते हैं, स्पेंड करते हैं. अगर आप सिटी के अंदर रह रहे हैं और आपको $15 एवरी डे देने ट्रेन के, ठीक है, और आप फिर भी ऑफिस से करीब रह रहे हैं कि शायद मुझे 20 मिनट्स की ट्रेन लेनी पड़े, एंड मैं $700 पर वीक दे रहा हूँ उस घर में रहने के लिए, as compared to if I've got to go on a 45 minutes train to my workplace और मैं $400 दे रहा हूँ. ठीक है. हम्म. दोनों केसेस में आप $15 पर डे ट्रेन को तो दे ही दे रहे हैं. दैट इज फिक्स्ड अमाउंट. ठीक है. इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि मुझे कहाँ पर अकोमोडेशन लेनी है और रहना है. तो जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है एक्सपेंस है, आई वुड से वो अकोमोडेशन का ही है, स्पेशली लिविंग विद फैमिलीज. इससे बड़ा बाकी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, फूड है, बाकी चीज़ें हैं, वो यस दे नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज लॉन्ग एज आप खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं. बाहर से अगर आप डाइनिंग करते हैं तो फिर ऑब्वियसली इट गोज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर आप खुद बना रहे हैं और खुद चीज़ों को खा रहे हैं तो फिर आप अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं यहाँ पर. Brilliant. To wrap it up for today, Fizan, I think biggest takeaway for me was
how strong the coaching culture is in Australia, and it's all about confidence as well. Whether it's about going abroad or whether it's about any sports. So we will also make more videos on that. So stay tuned, subscribe, like, share, and let us know in the comments if you have more things to say. So from your side, Fidan, how do you feel, and how would you conclude this podcast? So yes, I would like to say thank you to everyone for listening to us, and I would also want everyone to subscribe and like Saad's channel. Um, One thing is, if you're planning to come to Australia, if you're planning to come here on any sort of visa, do your own research. बहुत सारे avenues हैं यहाँ पर आने के लिए. यहाँ पर life tough है, it's not easy. ठीक है. If you're willing to sacrifice a good salary in Pakistan or any other country in the world, yes, it's an excellent place to live, no doubt. Australia has all the seasons, the summers है, winters है, autumn, spring, बहुत अच्छे beaches हैं, बहुत अच्छी living है, no doubt. ठीक है. The biggest struggle that I see in living in Australia is कि it's too far from any other place. So अगर especially क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती यहाँ से, तो इट्स लाइक नॉर्मली 20+ hours फ्लाइट टू पाकिस्तान. तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कंसिडर करनी पड़ती हैं जब आप ओवरसीज रहते हैं. बाकी ये है कि इफ़ यू कम हेयर यू स्ट्रगल, तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, एंड इट्स अ लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. And I तो think थैंक यू सो मच एवरीवन. nationality भी काफी comparatively जल्दी मिल जाती है within 5 6 years, या right? सो इसमें ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, पीआर पे होते हैं और 5 years आप स्पेंड करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए. वेर एज इन यूके और यूरोप काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी टफ हो गए हैं एज कम्पेयर टू Hmm. कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. तो मैं यही कहूँगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स अपनी देखें before moving here. Weather wise, it's absolutely amazing. ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है. बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, स्नो है, इधर डेजर्ट्स हैं. ठीक है. इट्स अ ह्यूज प्लेस टू एक्सप्लोर. आपकी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. You can spend as much as you want over here, or never ending Hmm. जो है ना चीज़ है ये. तो आप जो है ना वो अपनी ये सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर करें, और फिर ऑस्ट्रेलिया को आप देखें एज एन I think ऑप्शन. it's a great motivation to go go to Australia. Plus, there is no language barrier as well, so that's really important. Thank you so much, Fazan, for your थैंक यू. time. I think we took a lot of your valuable time, and I hope you. And I know it's already night in Australia, so go enjoy with your friends as well. ओके, थैंक यू साहब, All थैंक right. यू फॉर. Thank you. Take care.